This search engine was addressing the needs of basically the changing Indian, the one who was accepting technology. India का very first certification program. 20 years back. 20 years back, recognized by the Graduate Realtors Institute of USA. अभी जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है हमने क्या किया, हमने कुछ तो मैजिक किया इस वर्ल्ड में. 2 महीना हुआ कोई सौदा नहीं हुआ, तीसरा महीना हुआ कोई सौदा नहीं कि फिर बीवी बोलती है भाई कहाँ जाते हो पूरा दिन. 20 साल पहले .com ले गए आपका बिजनेस. तब हुआ था कि अरे ये लोग पैसा लेंगे तो मैजिक ब्रिक्स वगैरह. अभी आप को एग्जिस्टेंस में हो उनके साथ, आपने टेक बढ़ाया तो आप उनके साथ. नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द किशन मिलानी पॉडकास्ट. आज के गेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. शी इज बीन ए पायोनियर इन रियल एस्टेट ट्रेनिंग 20 इयर्स बिफोर. शायद ही उस वक्त कोई होगा जो ट्रेन करता होगा या किसी ने सोचा भी होगा कि रियल एस्टेट ब्रोकर्स या एजेंट्स को ट्रेनिंग की जरूरत है. शी हैज गॉट ए डॉक्टरेट इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड दैट इज हाउ she's trained thousands of realtors all over. आज हम बहुत सारा नॉलेज उनसे लेंगे, प्राप्त करेंगे एंड आई एम श्योर आपको इसका बहुत फायदा होगा एंड यू विल एंजॉय दिस पॉडकास्ट. सो आवर गेस्ट स्पीकर इज नन अदर देन डॉक्टर मोना शाह. वेलकम डॉक्टर, वेलकम टू द पॉडकास्ट. थैंक यू, हैप्पी टू बी हियर. या सो डॉक्टर, आप इसमें हमको थोड़ा बताइए एट द इनिशियल स्टेज हाउ डिड दिस हैपन. ट्रेनिंग रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स 20 years back was, I mean, बहुत सारे लोग तो तभी बिजनेस में भी नहीं थे and you started training people during then. So how did this idea come to your mind? Actually, frankly speaking, I have to give this to the earlier employer of mine. I used to work with IndiaProperties.com. That right. was India's very first search engine. Yes. And much before the time. Much before its time, yes. But it opened up so many good avenues for India with nobody recognized, but a few of you. Yes. You all were part of that whole idea, and you grew with that also. Absolutely. Over the past 2 decades. So what happened at that time was this search engine was addressing the needs of basically the changing Indian, the one who was accepting technology, the one like the NRIs who were already tech savvy and wanted to buy property in India. Yeah. So they had no way of knowing how to approach the Indian market except the traditional way, which was through the family and the friends and some network, word of mouth, that okay, this builder is good, that broker is helpful, so on and so forth. But with the advent of IndiaProperties.com, that was the first search engine. Yeah. And they began to provide what we call the research, the markets, the study of locations, the neighborhoods, the kind of demographic, setup, as you can say, in every locality, so that the prospective buyer could make a decision or at least could zero in on the property of choice. Then there was also the additional brokers who were there, and a list of those would also appear. So it kind of took them to the next level of purchase. Yes. Where, trustworthy brokers who knew the market, who knew their locality well, who were willing to be transparent and helpful. As I said, their relationship was very important. All that really actually began. It was very new for me also because that was the .com era. And we all know with the .com era, there were some hits and some misses. So eventually, of course, I joined there. I became the Dean of Academics and of Research because what happened was that Mr. Malkani, who had actually, who was the founder promoted of that company, he wanted that brokers in India work like those from where he had come, which is the US of A. Now, over there, they had to undergo licensing exams, and they have to, even to this date now, like there are markets like Dubai and USA and some other places where licensing is compulsory. So he felt that once we have this, then the changing Indian
and is going to actually jump on this bandwagon of पढ़े लिखे अच्छे वाले ब्रोकर के साथ काम करना, ये जो दैट आइडिया के साथ वो काम कर रहे थे। तो ये ऐसे हो गया कि हम वहां ज्वाइन हो गए। फिर आई बिकेम द डीन ऑफ एकेडमिक्स एंड रिसर्च। तो हमने एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम तैयार किया, इंडिया का वेरी फर्स्ट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम 20 years back, recognized by the Graduate Realtors Institute of USA। तो वो GRI हम यहाँ पे पूरा मैंने ही बनाया था, करिकुलम सब कुछ बना के हमने भेजा था GRI के पास, एंड उन्होंने उसको रिकग्नाइज किया। सो क्या हुआ कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया का जो ब्रोकर जिसने ये सर्टिफिकेशन लिया था वो NAR का मेंबर तो हो ही रहा था, एंड उसको रेफरल के थ्रू उसका नाम भी जुड़ गया NAR के साथ। एंड NAR इज अ वर्ल्ड वाइड बॉडी, जो कहते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स, वो वर्ल्ड वाइड बॉडी है। तो यहाँ पे बैठ के समझो आप है तो पूना से ब्रोकर जुड़ गया पूरे वर्ल्ड में, बिकॉज उसके पास वही सर्टिफिकेशन था जो दूसरे ब्रोकर्स के पास था। So India became the first country for even GRI and NAR to get a recognized program, certificate program. Yeah. This was in 2000. So, 2000. Teaching people then and teaching people now. So it's been about 20 years of journey. आपको क्या फर्क कब लग रहा है? अब आपको लगता है कि we are evolved, अब we are ready to take this trainings and grasp? Yes, I mean अभी तो गवर्नमेंट ने तो मैंडेट कर दिया। तब कैसे था वो जो आप जैसे ऑल ओवर इंडिया हमने वो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम रन किया था, और हम देख रहे थे कि जहाँ पे वो एक एवरीबडी हैज दैट काइंड ऑफ स्पार्क कि मैंने कुछ अलग करना है, मैंने कुछ अलग से मेरा बिजनेस चलाना है, वो वाले तब ज्वाइन हुए थे। एंड काफी सारे हंड्रेड्स में, जब तक कि मैं इंडिया प्रॉपर्टीज में थी, मेरे बाद भी चल रहा था, hundreds of brokers had actually taken the certification। तो उसके बाद क्या हुआ, एक लल पीरियड आ गया, जहाँ पे ऐसे हो गया कि कोई भी प्रोग्राम एज सच ब्रोकर्स के लिए नहीं था। मैं भी अपना PhD करने के लिए टाइम आउट लेके आई ज्वाइंड एक यूनिवर्सिटी कॉल्ड निकमार, और वहां पे मैंने PhD खत्म होने के बाद एक फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन रियल एस्टेट शुरू किया। दैट वाज इन 2009, एंड 2009 में 2 years फुल टाइम प्रोग्राम इन रियल एस्टेट एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, ये उसका नाम था, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। ये कभी एशिया में भी ऐसे नहीं हुआ था, वो हुआ ही नहीं था। सो वो फर्स्ट प्रोग्राम में मेरे, आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरे सिर्फ 35 बच्चे आए थे, और वो 35 बच्चे अभी जहां जहां मैं देख रही हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड चले गए हैं। दे आर इन द बेस्ट ऑफ कंपनीज, एंड कोई US में है तो कोई दुबई में है तो कहीं, एंड अभी जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है हमने क्या किया, हमने कुछ तो मैजिक किया है इस वर्ल्ड में, बिकॉज आई नेवर गेव अप द आइडिया ऑफ एजुकेशन। क्योंकि जितना आप एजुकेशन देते हो उतना ही आपके, जैसे कहते हैं ना, यू चिजल योर टूल्स, वैसे होता है, जितना चिजलिंग करो उतना ही अच्छा। So it was kind of breaking the glass ceiling जैसे बोलते हैं। मेरे लिए तो यस, एज अ लेडी ऐसे किसी ने भी नहीं किया था। और रियल एस्टेट, ये 2 शब्द भी इंडिया में नहीं थे, जो कि आई थिंक इंडिया प्रॉपर्टीज ने पहली बार, मैं कह सकती हूँ कि इंडिया में ये वर्ड्स भी लाए। टॉकिंग अबाउट इंडिया प्रॉपर्टीज, मुझे याद है व्हेन नरेश मलकानी, he's been a friend since then. So when Naresh had initially approached us, हमारे बहुत सारे लोग ये समझते थे कि ये कोई डेटा वाला काम है, so he'll take away all the data, and mindset बहुत अलग था। Data was absolutely had to be secured, कि अगर मेरे क्लाइंट का नाम वहां चले जाएगा तो it may leak out, आज तो डेटा, सेम डेटा has been floating everywhere। So उस टाइम में Naresh had to go through all this and fight it out, and that is how it came up। So what is the next after you finished your trainings there, 20 years, then you joined Nikmar, and after that, how's been your journey then after that? Actually, in 2007, I received my doctorate from the Pune University, and at that time, एक search करना पड़ता है कि किसका कोई और ऐसे
रिसर्च डॉक्टरल लेवल पे हुआ है रियल एस्टेट जी में हाँ। या नहीं, एक पहले एक रिसर्च करना पड़ता है हर एक डॉक्टरल स्टूडेंट को। तो वॉट एवर इंफॉर्मेशन आई गॉट एट दैट टाइम, ये 2003 में मैंने रजिस्टर किया, तो कोई भी नहीं था जिसका रियल एस्टेट में पीएचडी था फ्रॉम द मैनेजमेंट फैकल्टी। हाँ। एक ही थे जिन्होंने रियल एस्टेट डिजाइन में किया था, बट वो आर्किटेक्चर फैकल्टी के थे, मैं मैनेजमेंट फैकल्टी की थी। किसी ने डॉक्टर राव, यस आई एम डॉक्टर टॉकिंग, राव, सो वो तो डिजाइन इज डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट यानी वी आर टॉकिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, वी आर टॉकिंग ऑफ बिजनेस, वी आर टॉकिंग ऑफ, सो यू कैन, आई स्टिल फील perhaps mine was the first PhD in real estate because I got completely fascinated with the idea कि कितना रियल एस्टेट के अपने इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी, यानी भारत अगर देखा जाए तो भारत के इकोनॉमी के साथ कितना जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो फिर अहमदाबाद का वो स्टडी तो बहुत अभी तक कोट हाँ। किया जाता है कि 250 इंडस्ट्रीज रियल एस्टेट पे डिपेंडेंट है। तो जैसे हाउसिंग वगैरह आपने देखा है कि 2-3 गवर्नमेंट्स ने हाउसिंग को बहुत महत्व ज्यादा बढ़ावा दिया है, और उससे ही जीडीपी का ग्रोथ भी राइज हुआ, ये तो हमको पता है। फिर हमारे जब निकलना शुरू हो गए, एक वही टाइम में हमने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी लानी चाहिए, हाँ। इसके ऊपर हमने रिसर्च किया था। सो मैं और मेरे स्टूडेंट्स, उनका मास्टर्स थीसिस था और मैं गाइड थी, तो हमने एक ऐसे रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, इसके ऊपर एक कंसेप्ट रिसर्च किया हुआ था। अच्छा। ये हुआ 2006, 7, 8 के बीच में। ओके। 2 years मास्टर्स में थे हमारे जी हाँ। स्टूडेंट्स, तो तब हमने वो किया था। और हमने एक जैसे रियल एस्टेट स्टेट लेवल सब्जेक्ट है, लैंड रियल एस्टेट, वो हाँ। सेंट्रल नहीं है जैसे डिफेंस या ऐसे हाँ। होता है, स्टेट लेवल है। तो हमने ऐसे ही बनाया था कि उसका रेगुलेटरी अथॉरिटी विल बी लाइक अ CERC, जैसे कि अपना होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे स्टेट लेवल के बोर्ड जैसे होते हैं। हाँ, तो स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी और ऊपर, सबसे ऊपर होगा सेंट्रल अथॉरिटी। सो ऐसे ही हमने सोचा था। फिर उसके बाद कंसल्टेशंस हुए थे, हडको को दिया गया था काम 2009 में कि एक दिल्ली में जी। फिर हमने अपने क्लॉजेस दिए थे कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, हमने रेकमेंड किए थे, एकेडमिक, फुल टाइम एकेडमिक तो दिए थे हमने, और वो आए हैं। सो ये मुझे याद है 2007 में व्हेन वी स्टार्टेड NAR इंडिया, हाँ, सो आई वाज वन ऑफ द फाउंडर्स, नरेश मलकानी हैड गॉट मी, डॉक्टर राव हमारे चेयरमैन थे, फॉर्चुनेटली आई हैव हैड एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हिम आल्सो। राइट। तब ये बात शुरू हुई थी कि रेरा कोई चीज आ रही है, रेगुलेशन बिल आ रहा है, बिकॉज हम तब चाहते थे कि रियल एस्टेट ब्रोकर्स का एग्जाम हो और उसके बाद उनको लाइसेंस दिया जाए। तो उन्होंने बोला नहीं, लाइसेंस राज तो खत्म कर रही है गवर्नमेंट, ये नया कहां से लाएगी। तो तब बताया गया था कि रेरा का कोई गठन हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ही है। देन दैट टाइम वी हैड आल्सो रिक्वेस्टेड डॉक्टर राव अगर वो हमारा पक्ष रख सकते हैं ब्रोकर्स का। सो वी वर टू स्मॉल, NAR इंडिया वाज जस्ट इन द नेसेंट स्टेज, तभी शायद वो उस टाइम हो नहीं पाया। आई टेल यू, इसके पहले भी बहुत मजेदार कहानी है। अगेन पुणे में जितना ये सब हुआ था, ये सबको जानकारी मिलनी चाहिए कि पुणे बहुत आगे था। एक तो इंडिया प्रॉपर्टीज पुणे में था, फिर ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लेके हम दिल्ली गए थे, यस डॉक्टर राव को मिले थे, वहां नरेडको के साथ हमने काफी सारी बातचीत की थी, एंड आगे भी हमने वहां पे ही सर्टिफिकेशन के प्रोग्राम्स रन किए थे उनके प्रीमाइसेस में। इन द मेन टाइम मैंने एक व्हाइट पेपर लिखा था कि व्हाई वी नीड ब्रोकर लाइसेंसिंग, एंड महाराष्ट्र स्टेट के IGR को वो प्रेजेंट किया था। वो व्हाइट पेपर जहां पे हम कह रहे थे कि इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू इंक्लूड ब्रोकर इन द होल मार्केट वैल्यू चेन। मार्केटिंग का जो वैल्यू चेन है, जो शुरू होता है डेवलपर के साथ, और उसमें और एक इम्पोर्टेंट एंटिटी होती है ब्रोकर। तो हम चाह रहे थे, और उस व्हाइट पेपर में हमने इंक्लूड किया था दैट वी शुड हैव द फोटोग्राफ ऑफ द ब्रोकर ऑल्सो, कि जब स्टैम्प हम जब जाते हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के ऑफिस में, जिसने वो डील ब्रोकर किया है, उन that gentleman or lady must be also part of that purchase and sale.
सो तब अगेन इट वाज एन आइडिया टू अर्ली फॉर इट्स टाइम. सो वहां हुआ नहीं, लेकिन ये हमने फिर ये जो क्लॉज एज एन एकेडमिक, एज आई सेड, हम निकमार में काम करते थे, तो मैंने ये भेजा था कि ब्रोकर का लाइसेंसिंग होना चाहिए. ब्रोकर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी से काम करता है और करना भी चाहिए, क्योंकि पूरा लॉ में एक छोटा सा, आई टेल यू, आई वोंट गो इनटू द डिटेल, बट लॉ में एक लॉ ऑफ एजेंसी नाम की एक चीज होती है. तो जब एजेंसी की का लॉ आपके ऊपर काम करता है, क्या एजेंसी का लॉ क्या है कि आप ना तो वो प्रोडक्ट को खरीद रहे हो, ना तो रख रहे हो लाइक अ होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर, ना आप रख रहे हो, आप सिर्फ एक से लेके दूसरे को पास ऑन कर रहे हो. ठीक है. और ये जो करोड़ों में एक एक प्रॉपर्टी होती है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे ट्रस्ट से ये वैल्यू चेन में आपने काम करना है. तो लॉ ऑफ एजेंसी सेज कि अगर आपको एक कमीशन उठाना है तो आपने पूरा ये प्रोफेशनली हैंडल करके ट्रस्ट और एथिक्स के साथ ये आपने करना है. अगर आप नहीं करते तो फिर ऑब्वियसली आपको you will face the Action. consequences Yeah. of it. So ये शायद सब इसके बारे में जानकारी शायद नहीं रखते. नहीं है. तो बहुत सारी चीजें हमको समझनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स बिजनेस है. ये टेक्नोलॉजी भी आपको आनी चाहिए कि अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी डेवलपर को या किसी क्लाइंट को जो आपका खरीदार है, आप तो किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बायर को भी कर सकते हैं या सेलर को भी कर सकते हैं. सो ऐसे जब होता है तो आपको दोनों पार्टीज का जानकारी रखना, जो आप इन इंग्लिश उसको कहते हैं प्रिंसिपल, जो आपके प्रिंसिपल है. अगर बायर आपका क्लाइंट है तो वो आपके प्रिंसिपल है, बिकॉज उनसे आपको कमीशन मिलना है. इफ इट्स द अदर वे, डेवलपर ने आपको रिटेन किया है तो दे आर योर प्रिंसिपल्स, बिकॉज कमीशन उधर से आएगा. सो यू मस्ट नो द पार्टी वेरी वेरी वेल, क्योंकि आप सिर्फ दोनों को साथ में मिलाने का काम कर रहे हैं. पर ये काम करते समय ये जोखिम का काम है, क्योंकि आप तो गुड्स को अपने पास नहीं ले रहे हो, आप कह रहे हो कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, और आप दोनों को मिला के आप कह रहे हो कितने अच्छे दोनों पार्टी है. सो दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन जिसको टाइम लगता है, जो कॉम्प्लेक्स भी है, जिसमें बहुत पैसा अटका है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने करना है. ये हुआ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का. लैंड में तो और भी ग्रे एरियाज हैं बहुत ज्यादा. सो ब्रोकर एज अ प्रोफेशनल हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नोइंग कि मैं जो एडवाइस दे रहा हूं वो आगे चल के पार्टीज को बाधा नहीं करेगा. इट विल नॉट एडवर्सली अफेक्ट द रिलेशनशिप इन द फ्यूचर. ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, और हम देख रहे हैं, आप तो यहाँ 30 साल से मैं कर रहा हूं. तो आप देख रहे हो कि कितने गैर जिम्मेदारी से ट्रांजैक्शंस होती हैं, एंड उसके जो रिपरकशंस है, उसके जो उस सब के नाम भी खराब होते हैं. जी हाँ. सो थोड़ा सा सोच के करना अपने लिए. मैंने देखा है पिछले 30 सालों में काफी ट्रांजिशन हुआ है इस फील्ड में. पहले जैसे आप बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन दोनों तरफ से होता था. बायर भी मेरा क्लाइंट है, सेलर भी मेरा क्लाइंट है. सो हम किसको जस्टिस करेंगे, विच साइड विल बी टेक. अब वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, क्योंकि शायद ब्रोकर्स की तादाद भी बढ़ रही है. और तो सो यूजुअली दोनों क्लाइंट्स आपके नहीं होते हैं. सो इन अ वे इट इज गुड. सो एटलीस्ट यू आर रिप्रेजेंटिंग वन क्लाइंट, जहां से आपको पैसा मिल रहा है उन्हीं को रिप्रेजेंट करो, जैसे लॉयर्स का होता है. इसमें डॉक्टर मोना, जैसे आपने शुरू किया था, तो ये ट्रेनिंग एक्सेप्टेंस कैसा था ब्रोकर्स का? वर दे एक्सेप्टिंग द ट्रेनिंग? बिकॉज ब्रोकर्स नेवर वांट, उनको ऐसे लगता है कि हमको सब पता है, आप बाहर वाला आदमी हमको क्या सिखाएगा. आपने थोड़ी बिजनेस कभी किया है या ब्रोकरेज किया है. सो हाउ ये ऑब्जेक्शन आपने कैसे हैंडल किया था? अभी भी जूझ रहे हैं. एंथुसियाज्म उतना ही है, क्योंकि यस, आपने ही कहा है कि कितना रेजिस्टेंस है. बट इसके पहले आई विल जस्ट टेल यू कि ये आपने जो कहा कि आप अर्लियर बायर को भी रिप्रेजेंट करते थे, सेलर को भी, और आप कहते थे
1% इधर से आएगा, 1% उधर से आएगा, प्रॉब्लम क्या है उसमें? तो एक्चुअली इन सम प्लेसेस इन द यूएस इसको कहते हैं डुअल एजेंसी. जी. तो डुअल एजेंसी इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि एज आई सेड, लॉ ऑफ एजेंसी जब होता है तो यू गिव द बेस्ट. यू नो, वो जो फॉर्मूला है कि केयर, ओबीडियंस, लॉयल्टी वगैरह, डिस्क्लोजर, ये सब जो चीजें होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रोकर होनी चाहिए, कि आप जो करेंगे वो सबसे अच्छा ही सर्विस आप देंगे आपके प्रिंसिपल को, जिससे आप कमीशन ले रहे. तो ये दुविधा होती थी, और वो दौर था कि लोगों को लगता था कि ये ठीक है, पर अभी आप ही कह रहे हो कि ये थोड़ा थोड़ा अभी चेंज हो रहा है, विच इज गुड, Yeah. विच इज एक्चुअली गुड, बिकॉज बायर को इसका लाभ है, और जो जिनको आप रिप्रेजेंट करते हो उनको उसका लाभ मिलता है. 1 and 2, कमिंग टू योर यस, पर एक होता है ना, जितना रेजिस्टेंस आपको मिलता है उतना कोई कोई लोग होते हैं जो ज्यादा यू नो प्रेरित हो जाते हैं कि नहीं ये तो बदलना ही है. तो शायद उनमें से हम एक आप है. उनमें से हो, तभी आप डटे हो अभी तक. Yes, yes, and I think till my dying day, I You think will I keep will doing this. continue, because it is not just about the few of you. ये ब्रोकरेज इतना लोकलाइज्ड बिजनेस है ना, कि छोटे लोग लाइक ट्रायंगल में जो लोकल बिजनेस करते हैं, जो नेबरहुड में भी बिजनेस करते हैं, ऐसे काफी सारे होते हैं. जी. यू नो, जो सिर्फ अपने सिटी तक सीमित है, वैसे भी बहुत है. हाँ. Very few are those who are doing international या intercity, tier 1, tier 2. Cross selling. Yes. So जब ऐसा माहौल है तो वहां तक जाने में बहुत साल लगेंगे. हाँ. और जितना मैं कर सकती हूँ, जो हमने शुरू किया है, वो तो खत्म तो नहीं करना है ना. हाँ. That is, so it will continue. So Hopefully. I'll just add to this. ये रियल एस्टेट एजुकेशन का चैनल, इसको ही ध्यान में रखते हुए, ये शायद एनआर इंडिया से जुड़ने के बाद, शायद एसोसिएशन से काम करने के बाद, मुझे भी ये समझ आया कि हमने अपना तो हो गया, जितना होना था, क्या होना था. अब आगे के जनरेशन्स को अगर ये नॉलेज जाता है, वो सीखते हैं. हिंदी मीडियम बात करने का मैंने इसी के लिए तय किया, ताकि रूरल से भी बहुत लोग अब इस बिजनेस में आ रहे हैं. देखिए, अर्बन एरियाज में रूरल की पॉपुलेशन आके सेट हो रही है, एंड दे आर लुकिंग एट अपॉर्चुनिटीज. सो ब्रोकरेज इज अनदर अपॉर्चुनिटी दैट दे लुक एट. सो आई वांट दिस टू बी पेनिट्रेटेड टू दैट क्लास, ताकि वो जब आते हैं अर्बन सिटीज में, दे शुड बी रेडी. उनको उतना नॉलेज तो, बेसिक नॉलेज तो मिल जाना चाहिए. तो दैट इज द होल आइडिया ऑफ स्टार्टिंग दिस. और मे बी समडे वी वुड आल्सो डू समथिंग इन मराठी, बिकॉज हमारे महाराष्ट्र में इतने सारे छोटे छोटे टाउन्स हैं जहां बहुत बच्चे, दे कम टू बिगर सिटीज फॉर एजुकेशन एंड देन दे वांट टू सेट. तो अगर उनको ये एजुकेशन ट्रेनिंग थोड़ी बहुत वहां मिल जाए, तो probably they'll be more interested in joining this particular field. Yes, and Kishan ji, you know, you will do a great service if you, आपने अगर ये really आपके एसोसिएशन के द्वारा आपने ये ले लिया, because आपको पता है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन कितना जरूरी है और गवर्नमेंट उसके ऊपर कितना ध्यान दे रही है. अगर आपने यूथ है, अभी मैं जाती हूँ रूरल एरियाज में, मैं देखती हूँ कितने सारे सैड स्टोरीज उभर के आती है, जहां पे वो बेचारा फार्मर, ही सेलिंग हिज लैंड अवे एंड बिकमिंग डेस्टिट्यूट. या तो वो लैंडलेस लेबरर होता है, या तो उसको सिटी में आके फुटपाथ पे रहना पड़ता है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं है कि अपना कागज कैसे अपने पास रखे. अपना जो एक छोटा सा उनका जो होल्डिंग है, 1 एकड़ होगा, 2 एकड़ होगा, वो उसका वो एसेट है उनका, और उनको वो समझ ही नहीं है कि वो दे देते हैं जी. और मैंने इतना सारा देखा है कि वहां के जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे यूथ होते हैं, 10th स्टैंडर्ड वगैरह, उनको लिया जाता है सिटी के डेवलपर्स या ब्रोकर्स, और उनको ये सब म्यूटेशन वगैरह कुछ भी इधर उधर करवा के, ये सही नहीं है. और अगर वही यूथ अपने लोगों के लिए, अपने बिरादरी के लिए रूरल एरिया में अगर लैंड के लिए अच्छा रेट वो ब्रोकर कर सकते हैं विद द सिटी पीपल, देन आई थिंक इट्स अ फेयर डील. एंड ये जो चीजें हो रही है, सुइसाइड, फार्मर्स के सुइसाइड बढ़ते जा रहे हैं, कम तो नहीं हो रहे हैं, ये सब इसी कारण हो रहा है क्योंकि एक उनका जो एसेट
जो लैंड है वो भी वो गंवा देते हैं, या तो डाउरी में, बच्चे के शादी में, या बच्ची के शादी में, या जो भी है वो कुछ ना कुछ करके वो लैंड लिया जाता है। और जो शार्क्स होते हैं, हमारे में भी कोई स्ट्रेट है ऐसे नहीं कह सकते, जी हाँ, वी कॉल देम दोस लैंड शार्क्स। तो उनसे अगर बचना है तो डेफिनेटली उन्होंने वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो उन्होंने स्टडी करने चाहिए। उन्होंने एक नेगोशिएशन में उनको भी ये स्किल आना चाहिए, और उसमें उनको अगर कमीशन मिलेगा तो दे आर बिकमिंग स्किल ड्रिवन, एंड उनका बिजनेस शुरू होगा, एंड गवर्नमेंट वांट्स दिस ओनली। सो जितना डिजिटाइजेशन हो रहा है उनको उन तक पहुंचने में आप काफी सारा कर सकते हैं। कुछ देर पहले आपने अहमदाबाद का एक रेफरेंस दिया कि 250 कंपनीज, so I am Ahmedabad में, so would you explain a little bit for our viewers? ये बहुत अभी पुराना रिसर्च है, बट अभी भी लोग उसी को कोट करते हैं। वो शायद 2002 या 3 में वो रिसर्च किया गया था। इसको ऑफ कोर्स बहुत कॉम्प्लेक्स है, इकोनॉमिक्स का इनपुट आउटपुट मॉडल वगैरह होता है। जस्ट टेलिंग यू कि एक अगर घर आप देख रहे हो सिटी में, तो एक घर के पीछे 4000 पुर्जे या प्रोडक्ट या सर्विस लगती है, 4000 मिनिमम। ओके, यानी कि वो एक छोटा सा स्क्रू भी है, या वो डोर है, या जो भी है। एक सिंपल घर के लिए शायद 3000 हो गए, एक लग्जरी अपार्टमेंट के लिए वो 6000 हो सकते हैं, या 5000 हो सकते हैं, बिकॉज यू विल एड पेट सर्विस ऑल्सो, यू विल एड गोल्फ। फिर गोल्फ में आपको वो गार्डनिंग, लैंडस्केपिंग और वो इतनी सारी चीजें जुड़ी हुई है एक घर के साथ। सो उन्होंने 250 इंडस्ट्रीज को उन्होंने देखा इनपुट मॉडल में और आउटपुट मॉडल। सो एक अगर घर बनता है तो ये सिर्फ दीवार वाली चीज नहीं होती है, उसमें हम फैन लगाते हैं, ट्यूबलाइट लगाते हैं, स्विचेस लगाते हैं, तो वो हुआ फॉरवर्ड लिंकेज घर बनने के बाद। लेकिन घर बनाते समय भी चीजें लगती है, यानी सीमेंट, स्टील, फिर पेंटिंग है, ये है। सो वो होता है बैकवर्ड लिंकेज। तो ये अगर हम जोड़ें सब इंडस्ट्रीज, तो वो 256 इंडस्ट्रीज टू बी प्रिसाइज रियल एस्टेट से जुड़ी हुई है। ये स्टडी हुआ था, इसीलिए एक अगर आप हाउसिंग को बढ़ावा दे तो ये 250 इंडस्ट्रीज आगे बढ़ती है। इसीलिए जीडीपी हमारा काफी रियल एस्टेट काफी कंट्रीब्यूट कर रहा है। एंड गोइंग फॉरवर्ड ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है बाय द ईयर 2030 इन रियल एस्टेट बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा रियल एस्टेट पे। अनदर थिंग इज व्हेन वी लुक एट इंडिया vis-a-vis अदर कंट्रीज, ये भी तो आपने सोचना चाहिए कि मैं इस देश के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है। तो वो कंट्रीब्यूशन इतना जबरदस्त है कि अच्छे वाले कंट्रीज में मोर देन 15 to 20% ऑफ द जीडीपी रियल एस्टेट से आ सकता है। अगर वो नहीं आता है क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी को अगर आप ठीक ठाक नहीं पे करें वगैरह वगैरह, सो वो चीजें शॉर्टकट्स आर नॉट गुड, वो जीडीपी को पीछे खींचता है। सो आप इतना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज एज दे से ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है, क्योंकि इतना सारा पैसा पहले ही हम लगा देते हैं एक बिल्डिंग बांधने में या जो भी है, तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जब कंस्ट्रक्शन होता है तब होता है। तो ये फिजिकल एसेट है, ये कोई भी अपने अगर पूरे इंडिया को देखो तो हम क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो हम एक फिजिकल एसेट बना रहे हैं। फिर वो चाहे रोड हो, क्योंकि रोड तो लगेगी बिल्डिंग में पहुंचने के लिए, फिर वो बिल्डिंग हो या डैम हो या एयरपोर्ट हो, ये सब अपने देश के फिजिकल एसेट्स हैं जी। तो ये एसेट से डेवलपमेंट में डायरेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट हो जाता है। सो कोई भी ब्रोकर अगर ये पकड़ के चले कि मैं अपने देश के लिए, मैं अपने स्टेट के लिए रेवेन्यू ला रहा हूं, एक एसेट बना रहा हूं, तो पूरा माइंडसेट अलग हो जाता है, चेंज होता है। डॉक्टर, अबाउट रिसेंटली अभी जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग्स इंट्रोड्यूस की है, लाइसेंसिंग इंट्रोड्यूस किया है, सो इसके बारे में कुछ और बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं
मेनी पीपल नो अबाउट इट, लेकिन अभी भी बहुत लोग आगे नहीं आ रहे हैं इसमें. सो हाउ डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग एंड हाउ आर वी टेकिंग इट एंड व्हाई ओनली महाराष्ट्र? बाकी स्टेट्स में अभी तक क्यों नहीं इंट्रोड्यूस हुआ है? ओके, एक्चुअली ये जो मेरा पर्सपेक्टिव होगा किशन, वो कंप्लीटली एकेडमिक का पर्सपेक्टिव होगा, Absolutely, बिकॉज कमर्शियल एंगल नहीं है. कमर्शियल तो है ही नहीं, मैं और समझ रहा हूं. आपके माइंडसेट कैसे चलते हैं वो आप ज्यादा जानते हैं. पर मैं डेटा पे बात करूंगी. जी. मैंने जो अब तक हमने NAR इंडिया के साथ हम नॉलेज पार्टनर्स है, और इस महारेरा ट्रेनिंग में जो कि बहुत हजार से आगे हमने ट्रेनिंग किए हैं, तो हमने देखा है कि जब वो ट्रेनिंग में आते हैं तो वो बहुत एंथुजियास्टिक है. हाँ. अभी आने तक जो है वो फासला जो है वो डायरेक्टली आई एम नॉट रिलेटेड टू दैट, जी. बट आई कैन टेल यू कि आने के बाद हमारा जो सक्सेस या जो भी एक प्राइड मुझे लगता है, क्योंकि हर एक टीचर को अपने स्टूडेंट का प्राइड तो होता ही है, बस वही होता है. हाँ. इसलिए वो कहते हैं ना, टीचर फटीचर होते हैं, लेकिन बहुत बहुत आराम से हम जी लेते हैं, क्योंकि जब वो आता है और वो कहता है कि आप हमको एग्जाम पास करवाओगे, आप इतना अच्छा, हमको कॉन्फिडेंस है. वो 23 इयर्स का कॉन्फिडेंस हम उनको देते हैं कि हम जानते हैं कि ये सिलेबस को कैसे आपके ये देना है, लाइक हाउ टू मेक इट इन सच अ वे दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड. सो अब तक तो जो जिन्होंने एग्जाम लिया है, नॉट अ सिंगल वन हैज फेल्ड. सो इतनी सिंपल सी एग्जाम है, मैं वही बताती हूँ. इट्स वेरी सिंपल. 40% का सिर्फ गवर्नमेंट आपको तंग नहीं करना चाहती है. दिस इज द वे आई सी इट, क्योंकि 40% पास मार्क्स रखे हैं एक, और 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं. तो एक में नहीं होता है तो दूसरा ले सकते हैं, दूसरा नहीं होता है तो तीसरा ले सकते हैं. इससे वेरी क्लियर है कि ये पासिंग और फेलिंग का डर रहना ही नहीं चाहिए. अगर वो है तो एक. दूसरा अगर है तो मैं स्पेक्यूलेट कर रही हूँ, आप यू कैन ऑलवेज टेल मी वेदर ये सही है या गलत है. ये एग्जाम का एक डर है. कोई 70 साल के ब्रोकर है, कोई वो कहते हैं अभी मेरे कितनी उम्र रह गई, मैंने क्यों देनी है एग्जाम. ये भी तो आते हैं क्वेश्चंस माइंड में. तो शायद वो एक है. दूसरा एक है कि और एक प्रॉब्लम डाल दिया, अभी ये एग्जाम देना है, जैसे वो लॉज लाते हैं और हमको ही क्यों पीछे पड़ जाते हैं. दैट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस भी हो सकता है. तीसरा उनको लगता है कि देखते हैं दूसरे लोगों ने ज्वाइन करने दो, उनका लेते हैं, फिर हम वो लेट लतीफ जैसा सिंड्रोम होता है कि हाँ वो बाकियों का हो जाने दो, फिर हम बाद में आते हैं. तो वो भी तो हो सकता है. तो ये तो आप ही जानते हैं. लेकिन आई हैव टू टेल यू दिस कि एटलीस्ट महारेरा का जो मैं देख रही हूँ कि वो बहुत सीरियस है. वो चाहते हैं कि अगर फर्स्ट उन्होंने 2 डेडलाइंस अभी, एक डेडलाइन जो 1 सितंबर की थी वो आगे पुश किए हैं. वो है कि रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल ऑफ एग्जिस्टिंग लाइसेंस 1 नवंबर तक करना है. और दूसरा अभी उन्होंने प्रमोटर्स को भी उसमें जकड़ लिया है ताकि आप लोग जल्दी देवे. आई थिंक दैट इज द ओनली रीजन. 1 जनवरी तक सबने अगर आपको करना है, नहीं तो उसके बाद जो भी एक्शन लेनी है वो महारेरा लेगी. ये क्लियरली पब्लिक डोमेन में भी हम पढ़ रहे हैं, सबको पता है. और अभी शायद इसके बाद ये जो 45,000 ब्रोकर्स है, लास्ट वीक मैंने चेक किया था महारेरा के वेबसाइट पे, 45,145 रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं. शायद वो अभी इसमें कई मजेदार किस्से हमको देखने को मिलते हैं, बिकॉज हम काफी वक्त से इस बिजनेस में यहाँ पर है, बहुत सारे दोस्त हैं. तो मुझसे भी पहले वाले कुछ दोस्त हैं. तो एक पंजाबी बुजुर्ग हैं, ही इज बिन द बिजनेस, शायद मुझसे 10-15 साल पहले से बिजनेस में. सो ही इज अराउंड 70-72, बड़े रिटायर्ड टाइप के हैं.
घूमते फिरते अपना बिजनेस भी चल ही रहा है। राइट। तो मुझे बोलते हैं यार अब क्या इस उम्र में एग्जाम करवाएंगे हमारा, वही। क्या क्या यार मस्ती कर रहे हो। मैंने बोला सर इस उम्र में पैसा भी तो कमा रहे हो ना। हाँ सही है। यस, आपने अगर आपको पैसा एसोसिएशन कमाना के है थ्रू ये करना ही चाहिए। हमने बोला, अच्छा है। दे दो ना सर एग्जाम, प्रॉब्लम क्या है आपको, आपकी जगह मैं तो बैठ नहीं सकता, ये तो कैमराज लगी हुई वहां पर, सो देयर इज नो शॉर्टकट टू दैट। True. अनदर इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई सॉ, इसमें पब्लिक भी अभी जागरूक हो रही है। जो बायर्स हैं या जो क्लाइंट्स हैं, मुझे एक पुराने दोस्त का फोन आया जो काफी वक्त से इस बिजनेस में, शायद मुझसे कुछ पहले वो इस बिजनेस में, मैं भी 35-40 साल से। He called me, he said, you know what, I'm only doing a developer's job. मैं तो क्लाइंट से तो ब्रोकरेज लेता ही नहीं हूँ कभी, क्योंकि मैं तो डेवलपर का ही बेचता और मैं सेकेंडरी मार्केट में हूँ, मैं तो प्राइमरी मार्केट भी नहीं करता। तो मैंने बोला फिर प्रॉब्लम क्या है, बोला डू आई नीड टू डू रेरा। मैं बोला नॉट टिल नाउ, अभी तो नहीं, लेकिन आगे चल के शायद वो भी इसके शिकंजे में आ जाएंगे। तो बोला बट देन व्हाई आर पीपल टेलिंग मी, द क्लाइंट्स, दैट आर यू रेरा रजिस्टर्ड? So I said, no, that is an awareness that the client has. You have to face it, and going forward, ये बढ़ेगा. So if you're not RERA registered, maybe the clients don't want to deal with you. Correct. You know, that is a kind of certification. I said, I won't take these people's name because they're very close to me. मैंने बोला मेरे को एक बात बताओ, प्रॉब्लम क्या है तुमको एग्जाम देने में? What is the harm? ये कोई एमबीए के लाखों रुपए थोड़ी दे रहे हो, इसमें 5,000 10,000 में आपका पूरा काम हो जा रहा है, एंड यू हैव एन सर्टिफिकेशन। ऐसा क्या रेरा में है जो आपको पता नहीं है? रेरा जो आपको सिखा रहा है वो आप ऑलरेडी कर रहे हो, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप दे सकते हो बिल्कुल। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था, एंड आई वाज लिटिल कर्ट दिस टाइम। तो मैंने ये भी लोगों को बोला था कि इफ यू कांट गिव द एग्जाम्स, गेट आउट ऑफ दिस बिजनेस। सो आई डिड नॉट नो हाउ दिस विल गो। अभी कॉन्फ्रेंस में मुंबई में व्हेन आई मेट पीपल, दे केम टू मी, द प्रेसिडेंट्स ऑफ द एसोसिएशन, दे सेड वी हैव बीन शेयरिंग आवर वीडियोस, और आपके वीडियोस बहुत सारे ग्रुप्स में है। I said I was a little curt for the first time. बोला that this was the best video of yours. तो लोगों को ये पसंद आया। जागरूक करने का आप जो कर रहे हैं, it's really very good क्वेश्चन। आप keep at it. जैसे आपको अभी पता चलेगा, एक टीचर जैसे होता है कि हम बस करते रहे। You keep doing this. अभी मैं खुद बिलीव नहीं कर सकती हूँ कि एक आइडिया जो मुझे 23 साल पहले ऐसे इतनी भाग गई, रियल एस्टेट, और उसके वो क्या मायने रखता है अपने देश के लिए, वो ऐसे उसके ऊपर काम करते गए, और देखो आज वो दिन देखने को मिल गया कि एटलीस्ट जाने के बाद एक्सेप्टेंस वो आपके होते हैं। यस, नहीं, यहाँ पे भी बहुत जिएंगे, अभी बहुत स्टूडेंट्स को आपने ट्रेन करना है। आई गेस आपने करीबन 18,000 स्टूडेंट्स अभी तक ट्रेन किए हैं। यस, आई हैव बीन, क्या था कि मेरे अपने बिजनेस होते थे या मैं सर्विस में थी, पर मैंने कभी छोड़ा नहीं टीचिंग जी। सो वो क्या था, वो फैमिली में है। सो मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे भाई, मेरी बहन, सब हम टीचर्स हैं। सो मैंने एमबीए कर लिया था और मैं चाहती थी कि पैसा कमाऊं वगैरह वगैरह, तो मैं थोड़ा दूर गई थी टीचिंग से। लेकिन जैसे कि 1987 फ्रॉम सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट आई डिड माय एमबीए। सो व्हेन आई केम होम एंड वो सर्टिफिकेट दिखाया कि मेरा एमबीए हो गया है, उसी टाइम पापा बोले कि अच्छा पीएचडी कब कर रहे हो? और मैं ऐसे भागी, मैंने जॉब मुंबई में ले लिया, मुझे पुणे में रहना ही नहीं था, बिकॉज ही वुड हैव सेड वो पीएचडी के पीछे। और हमने तो एमबीए, आपको पता है कि एमबीए यानी हमको पैसा ही कमाना है वगैरह, वो ऐसे आइडियाज हो जाते हैं। पर देखो लाइफ कम्स फुल सर्कल। एक ऐसे टाइम आ गया जब मैं फुल टाइम एकेडमिक हो गई, हाँ, बिकॉज सेटिस्फैक्शन उसी में है। सो ये तो सक्सेस स्टोरीज हैं। समथिंग दैट यू वुड हैव लर्नड फ्रॉम योर फेलियर, आप अपने फेलियर से कुछ सीखे हैं। उसके पहले आपने पूछा था कि दूसरे स्टेट्स में रेरा क्या कर रहे हैं, सो आई थॉट आई शुड जस्ट टेल यू कि आई कैन ओनली स्पीक फॉर महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र इज ट्राइंग टू इज अ फ्रंट रनर। यानी महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो एक आप देख रहे हो कि सब साथ में है, फिर वो बिल्डर हो, कम्युनिटी हो, वो ब्रोकर कम्युनिटी हो, वो सब ने मिलके गवर्नमेंट के साथ बैठ के चर्चा करके वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो महाराष्ट्र में महारेरा के को लेके ऐसे कोई फ्रस्ट्रेशन या ऐसे नहीं है
आपके कम्युनिटी में, हाँ। बिकॉज आप भी जैसे सब आगे आके कहते नरेटको के जो चीफ जो है, जैसे हीरानंदानी जी है या ऑल दीज पीपल, दे आर ऑल वांटिंग to do better and Yeah. bring this profession, whether it is builder or it is broker, to a next level. So आपके एसोसिएशन में भी आप इसी के लिए काम करते हैं, बिल्कुल। वो भी उनके एसोसिएशन में उसी के लिए. So I see in this state कि वो एक ऐसे एंटेगोनिस्टिक रिलेशनशिप नहीं है. बहुत ही साथ में मिलके डिस्कशन करके आगे बढ़ रहे हैं. दूसरे स्टेट्स में आई थिंक उन्होंने बाद में भी रेरा अपने बाद हमारा फर्स्ट स्टेट था और हमारे साथ फोर्थ सेंट्रल एक्ट को अगर ये करना है तो मिनिमम 4 स्टेट्स हैव टू एक्सेप्ट. तो महाराष्ट्र वाज वन, एमपी वाज द अदर, गुजरात वाज अनदर, and I don't right now remember the 4th state, but perhaps it was Karnataka or somebody, where RERA first 2017 में आ गए. They embraced. Yes. बाकी के जो स्टेट्स हैं वो उसके बाद आए हैं. पर हमने जो किया है काम, सो ऑब्वियसली हम पायनियरिंग स्टेट को अडॉप्ट रेरा थे, तो हमने आगे उसको हम देख रहे हैं कि उसमें क्या प्रोग्रेसिव चेंजेस ला सकते हैं. Therefore we are in the front. अभी दूसरे स्टेट्स I'm hearing it from circles कि वो भी एक अभी शुरू करेंगे, जैसे कि महारेरा में लाइसेंसिंग है, ये बहुत ही नया है. यस. तो 5 साल आपने देखा कि गवर्नमेंट ने सीधा दे दिया था विदाउट एग्जाम. करेक्ट. आपने बस खाली रजिस्टर करना था और आपको रजिस्टर किया गया. अभी आपको 5 साल जब खत्म हो गए तब आपको अभी ये 6th ईयर में आपने एग्जाम इंट्रोड्यूस किया है. तो शायद वैसे इट इज शायद 5 साल भी ना लगे वहां, शायद जल्दी हो जाए कि जो भी नया ब्रोकर है उसने एग्जाम देके ही लाइसेंस लेना है और प्रैक्टिस करनी है, ये भी हो सकता है. सो वो एक शुरू हो जाता है, किसी ने स्टेप लेना है एंड दिस दूसरे. सो व्हाट इज इज राइट, ये दूसरे स्टेट्स भी इसको अडॉप्ट करेंगे, कुछ वक्त लगता है अनलेस दे सी, देन वंस द होल कंट्री एक्सेप्ट्स दिस, तब हमारा ये लेवल प्लेइंग फील्ड होगा और लेवल ऑफ सर्विस सब जगह पे एक जैसी होगी. जैसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स चाहते थे कि इंडिया की लेवल बढ़ जाए सर्विस की, और एनएआर के जरिए हम लोग ने अभी इतने एसोसिएशंस फॉर्म किए, 50-55 एसोसिएशंस हो गए हर एक सिटी में, तो आहिस्ता आहिस्ता लेवल बढ़ रही है. और आपका क्या है कि आप इंडिविजुअल प्रोप्राइटरी या प्राइवेट लिमिटेड ऐसे फर्म्स हैं जी, और आपको आप भिड़ रहे हैं फॉरेन ऑर्गेनाइज्ड आईपीसीज के साथ. यस. सो अगर आपको भिड़ना है, अगर आपको टिकना है, तो विदाउट एजुकेशन आप कुछ भी नहीं कर सकते. आपके कोड ऑफ कंडक्ट ठीक होने चाहिए, आपका ट्रेनिंग एंड कंटिन्यूअसली आपको वो रखना है. एक दूसरी बात ये है कि इसमें 2 लेवल पे काम हो रहा है. जैसे आपने अभी सरकार के मन में क्या है ऐसे सोचना चाहिए, तो सरकार में के मन में है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना है. जी हाँ. सो इंडिया का रैंकिंग उसमें टॉप 10 में वर्ल्ड वाइड आना चाहिए या टॉप 20 में आना चाहिए. अभी हम 63 पे है, लेकिन बस 5 साल पहले हम 160 पे थे, 120 प्लस. सो हमने 67 प्लेसेस वी हैव इम्प्रूव, क्योंकि उसमें बहुत 2-3 एक 8 चीज है उसमें से जो रियल एस्टेट में रिलेटेड है, आपको बताती हूँ. एक है कंस्ट्रक्शन परमिट्स, वो जितने जल्दी मिलते हैं वो उसके ऊपर वो निर्भर है. दूसरा है प्रॉपर्टी राइट्स, इसीलिए तो अलॉटीज को रेरा के थ्रू राइट्स जो उनके हैं वो हम सेफगार्ड कर रहे हैं. तो ये करने से हम 67 प्लेसेस बढ़े. सो प्रॉपर्टी राइट्स का जो इसके बारे में कुछ बताइए जरा. प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में हमारे प्रॉपर्टी राइट्स मींस व्हेन एफडीआई कम्स इनटू और यू वांट एफडीआई टू कम इनटू योर कंट्री, देन यू हैव टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट इकोसिस्टम. एफडीआई इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब बाहर से पैसा इंडिया में आएगा रियल एस्टेट के लिए. तो हमारा माहौल बनना है. अगर माहौल ही ठीक नहीं है तो वो पैसा नहीं आएगा. वो पैसा उधर के उधर या दूसरे और कंट्रीज में चला जाएगा.
जहाँ पे ट्रांसपेरेंट और अच्छे डीलिंग्स होते हैं। सो उन्होंने देखा है कि वो जो 4-5 चीजें मैं आपको कह रही थी, जी इलेक्ट्रिसिटी अच्छी मिलनी चाहिए ताकि इंडस्ट्री को सुविधा हो कि वो रन करे। लैंड के टाइटल्स ठीक होने चाहिए और लैंड की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। देन कंस्ट्रक्शन परमिट्स, यानी कि फटाफट, जो पहले होता था मल्टी विंडो, हमने इसके ऊपर भी काम किया था कि बहुत सारे 54 या 55 परमिशंस लेने पड़ते एनओसीज हैं। वगैरह, ये विंडो वो फाइल उधर उधर अब घूमती। कुछ कम हुई है, अभी सिंगल विंडो तक आ गई है, लेकिन अभी भी टाइम लगता है। अभी भी 10 होंगे शायद। हाँ। टाइम तो लगता है, टाइम लगना भी चाहिए। आपने सोचना चाहिए कि हमारी आबादी कितनी है और हमारा जो एग्रीकल्चर का होल्डिंग है, लैंड से ही सब शुरू होता है और क्लियर कट टाइटल होल्डर्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। करेक्ट। सो लैंड एक्विजिशन में डिफिकल्टीज है, ये है सब। पर आपने देखा है कि वो सब अभी डिजिटाइजेशन के जी हाँ। द्वारा खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है। सो ये जो चीजें हैं, तो आपका रोल कितना बड़ा है इसमें, आप सोच सकते हो व्हेन यू आर टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कंट्री। करेक्ट। आपका पर्सपेक्टिव जनरली क्या होता है कि अरे मैंने तो दुकान खोल दी है, अरे मेरा डील होना है, मेरा डील होना है, मेरा डील होना है। डील के आगे देखने की जब क्षमता हम बढ़ाएंगे, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, हाँ आपका तो चूल्हा जलना ही चाहिए, उसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन उसके साथ जिस बिजनेस में आप काम कर रहे हैं वो बिल्कुल पान वाले की तरह या सिक्योरिटी वाले की जो वो भी कहता है कि मेरे को पैसा दे दो, उनकी तरह तो नहीं हो सकता ना। वो अच्छे से ही करना अभी आपकी फितरत होनी चाहिए। दैट इज द वे आई लुक एट इट, एंड माइक्रो और मैक्रो। नो, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ये जैसे जो दूसरा काम कुछ करते थे प्रोफेशन, वी रिस्पेक्ट द पान वालास, द सिक्योरिटी पीपल, द फ्रूट वालास, एवरीबडी, बट वो अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे हैं। right. लेकिन अगर वो किसी और के प्रोफेशन को अडॉप्ट करते हैं या एम्ब्रेस करते हैं तो उनको उस प्रोफेशन की पूरी नॉलेज चाहिए। They should be trained in that and then they can do. Absolutely. अब हम लोगों को ये बोलते हैं कि भाई रियल एस्टेट बिजनेस इज नॉट ए पास टाइम बिजनेस, और ये पार्ट टाइम भी नहीं है। आप सुबह उठने से रात को सोने तक आपको ये रियल एस्टेट का ध्यान होना चाहिए। ओनली देन यू विल बी एबल टू डू बिजनेस। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, बस दिखाया, प्रॉपर्टी दिखाई और हो गया। आई हैव सीन देयर आर इंसिडेंसेस, डेवलपर्स के पास जो काम करते हैं सेल्स में या मार्केटिंग में, कई बार वो भी इससे प्रेरित हो जाते हैं कि अरे ये तो, इस पे तो इतना दम भी नहीं है बात करने का ये ब्रोकर में तो, लेकिन ये तो 2 लाख रुपए का चेक ले गया, क्लाइंट तो मैंने बात किया सारा, तो अगर ये 2 लाख रुपए ले जा सकता है तो मैं इधर 50,000 की सैलरी में क्या कर रहा हूँ। तो 2-4 महीने के बाद वो भी पेपर डाल देते हैं, डेवलपर को बोलते हैं भाई मैं अपना काम करूंगा। दे कम बैक, कम टू द, ये तो एरिना है ना, ये तो लड़ाई का, जंग का मैदान है। जब यहाँ आते हैं तो उनको आटे दाल का भाव पता चल जाता है। 2 महीना हुआ कोई सौदा नहीं हुआ, तीसरा महीना हुआ कोई सौदा नहीं है, फिर बीवी बोलती है भाई कहाँ जाते हो पूरा दिन, पैसा तो लाया नहीं है, जितने भी रिजर्व थे सारे पैसे खत्म हो गए। अब वो फिर बोलने लगता है, अब उसको आदत है हर 1 तारीख को उसको पेचेक आ जाता है तो अपना घर चलता है, बोलता है भाई ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। सो व्हाट आई एम सेइंग इज रियल एस्टेट इज नॉट एन इजी बिजनेस, it is an absolutely committed business. Yes. Then these people I have seen, they again go back to some other developer. That's right. क्योंकि अभी they don't have a face to go back to the same developer. किस मुंह से जाएंगे, निकले तो थे अपना बिजनेस करने के लिए। So I would also request these kind of people कि अगर आपको ये रियल एस्टेट का बिजनेस करना है तो पूरे ध्यान से कीजिए, वरना don't come here for a temporary period. This is a long haul. Anybody coming here has to come here for a long haul. And fortunately आपकी जो भी ट्रेनिंग्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी चैनल पार्टनर को या रियल्टर को एक लेवल पे लाने के लिए। ये रियल एस्टेट में महारेरा की ट्रेनिंग अभी आई है, जो अभी आप एनआर इंडिया को के साथ अभी आप ब्रोकर्स को दे रहे हैं। तो इसमें जैसे लैंग्वेज का थोड़ा बैरियर आता है लोगों को कि उनको लगता है ऑनलाइन है तो शायद इंग्लिश में ही होगा, तो इसके बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को। yes, वो तो डेफिनेटली बैरियर होता है, बट वन हैज टू रियलाइज कि रियल एस्टेट ये लोकल बिजनेस है, तो जिस भाषा में आप बोलेंगे उतना अच्छा है। लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि जो ब्रोकर अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके रिन्यूअल के लिए,
वो कभी भी साउथ मुंबई से निकले भी नहीं होंगे कभी जाने के लिए रूरल एरिया में, और रूरल का जो बंदा है वो कभी निकल के मुंबई में नहीं कभी जाएगा। नहीं गया होगा. सो ये तो एम्पैथी रखना जरूरी है. हम मल्टीलिंगुअल कंट्री है, और इतनी हिंदी मैं आज बोल रही हूँ ये मुझे भी अच्छा लग रहा है. शायद एनएआर की ट्रेनिंग के बाद हम सब अभी भाषा 3 भाषा में हम बोल सकते बोल हैं. सकते हैं. नहीं तो आई थिंक अ फ्यू मंथ्स अगो इट वुड हैव बीन ओनली इंग्लिश. बट अभी मैं देख रही हूँ कि क्रिकेट में कमेंट्री भी अच्छे से इंग्लिश वाले हिंदी में कर लेते हैं. जी तो हाँ. हर जगह हम देख रहे हैं कि अपनी राष्ट्रभाषा. और उसका आई एम चलन श्योर बढ़ रहा है. मेरी जो हिंदी टीचर स्कूल में मुझे बहुत पिटाई She'll be- होती थी. She'll be very She'll be very happy कि- seeing you. Yes. So finally you've done it. यस. वैसे ही मराठी का है तो मराठी भी आनी चाहिए. एंड एज आई सेड वो जिस स्टेट में आप है उस स्टेट की थोड़ी बहुत भाषा आपको आनी चाहिए. अगर नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी तो है. सो हमारे ट्रेनर्स को हमने काइंड ऑफ कहा है कि जहाँ पे आप मराठी में बोल सकते हैं बोलिए, या तो हिंदी में बोलिए, एंड इंग्लिश ऑल्सो, बिकॉज एज आई सेड वी हैव अ क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल who do not know हिंदी और do not understand it quickly. जैसे ट्रेनिंग में जी. हम बोलते रहते हैं तो इंग्लिश में भी हाँ. होता है. तो अभी तक तो दिक्कत नहीं आई क्योंकि हम पहले ही पूछते हैं. So going forward, what is next? अब महारेरा की ट्रेनिंग तो हो रही है, आप कर रहे हैं, तो इसके बाद में आपने कुछ और सोचा भी होगा आगे क्या करना है? हमारा तो बिजनेस चल ही रहा है. आई डिसाइडेड कि मैंने मेरा वायती सिस्टम्स एंड रिसर्च जो है, जो ट्रेनिंग नहीं है, तो हमारे वेबसाइट पे ऑलरेडी ट्रेनिंग्स अनाउंस Listed लिस्टेड है. तो वो तो चल ही रहे हैं. और दिस ईयर इट विल बी 5 years. 2019 में 4 years. Okay. 2019 में वायती मैंने लॉन्च किया था. बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर विमेन कमिंग इनटू दिस बिजनेस, जो अब तक थोड़ा कम ही दिखता है. सो दैट इज समथिंग जहाँ पे लेडीज आएंगे वहां पे इट विल बी अ डिफरेंट लेवल ऑफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग. ये मुझे So Definitely. Let me tell you that Pune is a forerunner इसमें भी. यस. इसके पहले वाली एसोसिएशन में जहां मैं इन्वॉल्व था, वहां पर भी हमारे पास विमेन काफी थी. एंड हम जब एनएआर इंडिया के तरफ से और किसी सिटी में जाते जहां एसोसिएशन होती तो हार्डली 1 या 2 विमेन वहां होती, तो हम बहुत हैरान होते. एंड वी वुड एनकरेज देम कि व्हाई डोंट यू ब्रिंग फीमेल्स इनटू दिस बिजनेस. तो अब देख रहा हूँ कि कई इवन बॉम्बे, मुंबई डिड नॉट हैव मेनी विमेन रियल्टर्स दैट टाइम. अब शायद ये ज्यादा बढ़ रहा है. तो आई एम श्योर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे भी ये बिजनेस ज्यादा ऑर्गेनाइज हो रहा है, ट्रेनिंग इसमें आ रही है, एंड विमेन आर अंडरस्टैंडिंग देयर रोल, दे कैन प्ले वेरी वेरी वाइटल एंड इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज दे, और ये मल्टीटास्कर होते हैं विमेन. वो अपना घर का भी काम कर सकते हैं, ये काम भी कर सकते हैं, एंड दे कैन डू ए वेरी फैबुलस जॉब. नहीं, इन द यूएस ऑल्सो एक दौर ऐसा था कि देयर वर more 80% were women realtors. अभी तो it's come down to around 60%. Okay. But फिर भी there are more women realtors than male realtors in the US. So India में भी वैसा होना चाहिए. I would obviously, because ये जो traditionally construction या real estate या infrastructure, ये जो sectors हैं यहाँ पे, या defense, अभी वहां पे भी आप देख रहे हैं कि कितने सारे आ रहे हैं. तो यू शुड एक्चुअली प्रमोट दिस. आपने ऐसे अगर ले लिया कि 20% या 30% ऐसे, और देन 40% ऑफ आवर एसोसिएशन मेंबर्स विल बी लेडीज, देन यू कैन प्रमोट दिस. एंड एज आई सेड, ये स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये दोनों से जुड़ा हुआ बिजनेस है. और हमारे प्रोग्राम्स भी है टू बिल्ड द स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज मैनेजमेंट के फॉर लेडीज, फॉर यंग यूथ हमने बनाए हैं. तो उसके लिए दे कैन कम फॉरवर्ड एंड दे कैन अंडरटेक दिस लर्निंग. हर एक ने हायर एजुकेशन लेना ये बिल्कुल जरूरी नहीं है. हमने ग्रेजुएशन के बाद भी अगर अपना खुद का बिजनेस करना है तो दिस इज अ वेरी गुड बिजनेस टू स्टार्ट. सो आई वुड वांट टू ऑफ कोर्स मोटिवेट women to youth come into and this women to definitely join this business. But
वो माहौल अभी बहुत अच्छे तरह से गवर्नमेंट ने भी क्रिएट किया है कि आप लाइसेंस है आपका। सी आपको पता नहीं है कि जो बाकी की चीजें होती है वो बहुत मायने रखती है, यानी कि सिर्फ रेरा लाना ये नहीं किया है गवर्नमेंट ने 36,000 लॉज को सिंप्लीफाई करके अभी 3,500 तक लाया है। बहुत बड़ा काम है ये, तो कॉम्प्लेक्सिटी कम की है उन्होंने। PMLA लाया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि क्लीनिंग अप द बिजनेस जिसको कहते हैं, ताकि अच्छे लोग उसमें अट्रैक्ट, टैलेंट भी तो होनी चाहिए ना, अट्रैक्टिंग गुड टैलेंट, गुड पीपल। फिर बेनामी एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टीज, ये लाए हैं। सो ये सब लॉज जो है वो साथ में काम कर रहे हैं टू रेज दिस होल इंडस्ट्री टू द नेक्स्ट लेवल। So we should understand. I can second this because मुझे याद है करीबन 20 साल पहले I had met somebody who had come from abroad, तो तब उनसे बात हो रही थी तो वो बोलते नहीं इंडिया में हम लोग पैसा नहीं लगाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पैसे की सिक्योरिटी नहीं होती है। अगर लैंड में पैसा डालो तो कुछ प्रॉब्लम निकल आया लैंड में, तो हम लोग वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम कि हम लोग सालों साल यहाँ रहे हैं। आप लोग लोकल हो तो आप कर सकते हो, हम तो बाहर से आते हैं एक बिजनेस का पूरा फोकस लेके कि कितना उसका पूरा कितना पैसा हम लगाएगा और कितने टाइम में हमको एग्जिट मिलेगा। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो अब वो मैं देख रहा हूँ कि ड्यू टू ऑल दिस न्यू चेंजेस अब बाहर से पैसा आना शुरू हुआ है, ये डिजिटाइजेशन के कारण। सो द लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू शेयर यू नो एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स इज प्रॉपटेक। जितना कि आप टेक्नोलॉजी को अपनाएं उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आपका बिजनेस 20 साल पहले .com ले गए आपका बिजनेस। तब हुआ था कि अरे ये लोग पैसा लेंगे तो मैजिक ब्रिक्स वगैरह, अभी आप को एग्जिस्टेंस में हो उनके साथ, है ना, होम वो सब 99 एकर्स और ये सब यस 99 एकर्स, नेस्ट अवे, ये वो सब वो वहां पे है, होम लेन वगैरह, और आप भी हैं। कुछ नहीं होता है, आपने टेक बढ़ाया तो आप उनके साथ लेवल में आ गए। अभी और भी टेक बढ़ने वाला है जो टेक प्रेनर्स होंगे, यानी कि IIT या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलेगा, ऐप बनाएगा और बोलेगा मैं मेरा बिजनेस चलाऊंगा। तो उस टाइम में अगेन आपको अपनी लेवल बढ़ानी पड़ेगी। सो प्रॉपटेक का इस्तेमाल, सही इस्तेमाल करना आपके लिए जरूरी है आगे चल के। सो प्रॉपटेक का हम देख रहे हैं अभी बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं, जैसे आपने बताया कि IIT IIM से जो निकल कर आते हैं उनका एक दिमाग होता है कि इसको स्केल अप कैसे करें। अगर किसी भी बिजनेस को स्केल करना है, ऊपर ले जाना है, बढ़ाना है, मल्टीप्लाई करना है, तो वो इंडिविजुअल लेवल पे हो नहीं सकता, टेक को अपनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। फ्रैक्शनल बिजनेस जो रियल एस्टेट में भी आया है, दैट इज ड्यू टू प्रॉपटेक। यस, जो भी एक प्रॉपर्टी के फ्रैक्शन हो करके और उसकी ओनरशिप हो सकती है, दैट इज ड्यू टू प्रॉपटेक। इट इज ड्यू टू प्रॉपटेक एंड इट इज ड्यू टू पर्टिकुलरली फिनटेक। क्योंकि फाइनली ये इस एसेट को फाइनेंस के द्वारा कन्वर्जन होता है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी वैसे ही वो इमोबाइल होती है, तो उसको फाइनेंस में कन्वर्ट करना, कि उसका वैल्यूएशन करके और फिर उस फाइनेंस को टेक ऐड करके फिर उसके टुकड़े आपको पैसे के थ्रू आप ले सकते हैं उसको। अभी इट इज मैनिफेस्टेड थ्रू द चैनल ऑफ फाइनेंस। सो डॉक्टर मोना, वी हैव लॉट ऑफ व्यूअर्स जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, उनके लिए कुछ एडवाइस, व्हाट वुड यू वांट देम टू नो? वेल हाँ, इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज आपको अभी पता है कि सिविल सोसाइटी काफी एजुकेशन वगैरह पढ़ती रहती है, अभी न्यूज़पेपर्स है या देर आर, आई नो कि देर आर सोशल मीडिया पे भी ऐसे बहुत सारा इंफॉर्मेशन आता है कि कौन सी प्रॉपर्टी लेनी ठीक है, कौन सी नहीं है, किसके साथ आपने जुड़ना चाहिए, ऑल दैट आता ही रहता है। तो एक वो जागरूकता जो हो रही है लोगों में, वो अच्छी है, क्योंकि अब फाइनली उनके पैसे हैं और बहुत बड़ा एसेट है, बहुत पैसा वहां पे अटका पड़ता है, तो उनको भी जागृत रहना
इम्पोर्टेंट है। आपने देखा है गवर्नमेंट भी एड्स रन करती रहती है ऑन ग्राहक जागो वगैरह वगैरह, तो ये सीरियसली लेना चाहिए। अब तक कैसे है कि ये सब चीजें हम ऐसे आते हैं जाते हैं, इतना रेडियो मिर्ची पे सुनते हैं लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, पर देना चाहिए क्योंकि जितना वो सतर्क होगा उतना ही प्रोफेशन भी बढ़ेगा एक। और जितने उनकी जो अभी धारणाएं हैं या गलत धारणाएं हैं कि जो ब्रोकर है वो हमको लूटने के लिए ही बैठा है, या जो डेवलपर है वो हमको अच्छी चीज देगा ही नहीं, ये जो चीजें हैं ये भी कम होगी क्योंकि कोई भी अभी इतना सारा बदलाव मैं देख रही हूँ इन द पास्ट 20 years, और रेरा के बाद तो इसका स्पीड बढ़ ही गया है। तो अच्छे ब्रोकर्स हैं जो जानकारी रखते हैं और अच्छे डेवलपर भी है जो अपना प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट करते हैं, सब कुछ आपको अच्छे से डॉक्यूमेंट करके देते हैं। तो उन्होंने भी महारेरा वेबसाइट पे जाना चाहिए, उन्होंने भी देखना चाहिए क्योंकि ये जो वेबसाइट बनी है वो इसी कारण बनी है। शायद लोगों को ये अब तक पता नहीं है, पूरी तरह से पता नहीं है, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि वो महारेरा रजिस्ट्रेशन मांगते हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ पुश एंड पुल स्ट्रेटेजी। तो ये पुश स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट की है कि लोगों को जागृत करना और उनको अपने जो राइट्स है वो भी समझना जरूरी है। तो यही मेरा है कि आप अच्छे रेरा रजिस्टर्ड महारेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर्स अगर महाराष्ट्र में है तो आप उनके पास जाइए या रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के पास जाइए, क्योंकि दैट इज कुछ अपने पास ये होता है कि ये लोग ठीक है और ये डेवलपर उनके प्रोजेक्ट ठीक है। सो ये दिस इज इम्पोर्टेंट। अभी ये मैंने देखा है इसमें बायर्स में बहुत बार कि दे आर वेरी फास्ट, नॉट एवरीबडी में भी, बट मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि द मोमेंट यू टेल देम अबाउट ए प्रोजेक्ट, इमीडिएटली वो रेरा साइट पे जाकर के उनका प्रोजेक्ट का सैंक्शन लेआउट वगैरह डाउनलोड करेंगे, देखेंगे कुछ लिटिगेशन है क्या है। सो दे आर दैट वे, कई लोग इसको यूज भी कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है कि बाकी लोग जो नहीं यूज कर रहे हैं उनको भी इस पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। वन थिंग दैट यू वुड वांट अबाउट रियल एस्टेट, ए मिथ, कोई रियल एस्टेट के बारे में उसको डिबंक करना। ओके अभी ये आपने बहुत 2 words इंग्लिश में बोले हैं, आपको भी हिंदी में उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। मिथ मतलब ऐसी कोई मिथ्या कि उसके बारे में आप उनको बताइए व्यूअर्स को कि रियल एस्टेट के बारे में। ओके टिपिकली रियल एस्टेट जो अपने पापा मम्मी कोई भी दादा दादी हमको हमेशा घर ले रहे हैं, ध्यान से लेना, ये नहीं, क्योंकि एक जैसे उनके ऐसे फियर ये है, खौफ है कि बंदे के पैसे अभी गए। सो बड़ा पैसा है ना, बड़ा पैसा है और हार्ड अर्न्ड मनी होते हैं, तो सही है। वैसे शायद माहौल था भी पहले, अभी वैसे नहीं है। तो ये आपको समझना चाहिए कि जो जो ग्राहक है वो आपको कब रिस्पेक्ट देंगे, जब आप उस पहाड़ को पार करोगे अपने मन में कि अच्छी जबान और एक बहुत अच्छा नेटवर्क, इससे मेरा धंधा चलेगा। ये जो है वो अभी नहीं है, वो दौर अभी जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रूड या ऐसे बुरी तरह से पेश आओ, इसका मतलब ये है कि अब का जो बिजनेस है आपको पता होना चाहिए कि नॉलेज यानी कि ज्ञान और कॉम्पिटेंस यानी कि कर्तव्यगारी, यानी जितना आप कर्तव्यगार बनोगे, जितना आप अच्छे से बिजनेस अपना प्रोफेशनल की तरह, यही तो होते हैं। और एथिक्स यानी जो सही है उसी को लेके आप करोगे, जो लीगल है वही करोगे, जो नहीं है उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दोगे, क्योंकि इससे बिजनेस चलेगा। अपने आप स्वीट बोल के पहले होता था और पापा मेरे को आपका नेटवर्क दे दो ना, मैं उनको जाके बोलता हूँ, ये सब खत्म हो गया है। आप बिल्कुल अपना अपने आप, इवन इफ यू डोंट हैव पुरखों से
ये बिजनेस में नहीं है आप, या आपके चाचा मामा डेवलपर नहीं है, तो भी आप ये कर सकते हैं। और यही चीजें आगे चल के काम आएगी, वो ही ज्यादा बड़ी होने वाली है। ओके, वो ही ज्यादा बड़ी होने वाली है। कहाँ आपकी वो पेडिग्री देखेंगे, आप कहाँ से है, आपने कितनी पढ़ाई की है, आप कितना कॉम्पिटेंस रखते हैं, उसके ऊपर होगा। और एथिक्स का तो सवाल ही नहीं, वो तो टॉप ऑफ द। बिल्कुल, एथिक्स के सिवा तो कोई काम हो नहीं पाएगा। और आगे चल के लोगों को इस बात की जानकारी है कि कौन सही काम कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है। यंगस्टर्स की जैसे आपने बात की कि नेक्स्ट जनरेशन और जनरेशन आफ्टर दैट, वो हम अभी देख रहे हैं रियल एस्टेट में भी अब लोगों का, यंगर जनरेशन का एक्सेप्टेंस आ रहा है, जो पहले बिल्कुल नहीं था। दे वुड आउटराइट रिजेक्ट दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन, रेजिस्ट करते थे कि नहीं हमको ये ब्रोकरेज बिजनेस में नहीं आना है। अब वो आ रहे हैं। और हमने देखा है कि डेवलपर्स में भी सेकेंड और थर्ड जनरेशन के जो अभी आ रहे हैं यंगस्टर्स, वो काफी उनकी सोच अलग है, एंड दे थिंक इन अ वेरी डिफरेंट वे। वेरी सरप्राइजिंगली दे आर लिटिल मोर बेटर एंड फास्टर देन देयर पेरेंट्स इन द बिजनेस, so which is very very heartwarming. Yes, even business भी तो बढ़ रहा है, buy and sale भी velocity उसकी बढ़ रही है, क्योंकि लोग अपने एक उम्र में कितने सारे transactions even प्रॉपर्टी में कर लेते हैं। तो फर्स्ट 2-3 बार एक घर जहाँ पे रहते हैं वो भी बदलते हैं, सेकंड होम में भी जाते हैं, लैंड में भी जाते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट। एंड अभी फ्रैक्शनल ओनरशिप आएगी तो मल्टीपल जगह पे इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगे। Dr. Mona, the last question, what is your message for our viewers? आप क्या हमारे viewers को मैसेज देना चाहेंगे? आपका जैसे प्रोफेशन है टीचिंग का, और which you blend into real estate. So what would you advise our viewers? बस वही मैं कहूंगी जो पूरे इंटरव्यू में मैंने कहा है कि keep yourself sharpened. मैं हमेशा कहती हूँ अपना स्किल और कॉम्पिटेंस कभी खत्म नहीं होता है। अभी इस उम्र में भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम हम रखते हैं, जानकारी रखते हैं, क्योंकि जितनी तेजी से अपना अगला जनरेशन बदल रहा है, उनको अगर आपको सर्व करना है, उनको सर्विस देनी है, तो आपको उनसे आगे 2 स्टेप्स रहने हैं, क्योंकि वो आपके पास एडवाइस के लिए आते हैं। और एडवाइस हम किससे लेते हैं? जो जानकार होता है। तो आप जब कंसल्टेंट है, आप जब एडवाइजर है, तो आपको उनके आगे रहना जरूरी है। और उसके लिए आपको जस्ट कॉम्पिटेंस बढ़ाना है। कॉम्पिटेंस बढ़ता है स्किल से और नॉलेज से और एटीट्यूड। सो नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड, ये इन्वेंट्री होती है एक अच्छे सफल पर्सन की। तो वो बढ़ानी है बस, इससे ज्यादा आपने जैसे राइटली कहा कि सीखना है, एंड सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। टिल यू डाई यू कीप ऑन लर्निंग, प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली, व्हाटएवर। सो जिस चीज में रुचि हो, सीखना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मोना शाह, आज आपको यहाँ लाके आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स बहुत ज्यादा इस आपसे प्रेरित होंगे और दे वुड वांट टू फाइंड यू। सो फॉर माय व्यूअर्स, लेट मी टेल यू दैट डॉक्टर मोना शाह इज अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया, और मैं इनके सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, एंड वील बी बैक विद अ नेक्स्ट वीडियो, वेरी इंफॉर्मेटिव वन लाइक टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Thank you. Thank you very much.